हाँ जी बच्चा, today we are discussing about mass transfer. Mass transfer in mixture containing local concentration variations. For example, देखो अगर आप बिल्कुल मैं गल करा, mass transfer plays a very important role in bioprocess development. Basically it related to the actual mass, ठीक है, जो फर्मेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਅੰਦਰ ਮਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਇਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ठीक है, देन की हुंदा है, कह रहा है देर आर मैनी सिचुएशंस इन बायोप्रोसेस वेयर कंसनट्रेशंस ऑफ कंपाउंड्स आर not uniform. We rely on mechanism of mass transfer to transport material from regions of high concentration to regions where the concentration is low. For example, is the supply of oxygen in fermenter for aerobic culture? Concentration of oxygen at the surface of air bubbles is high as compared with the rest of the fluid. This concentration gradient promotes oxygen transfer from the bubbles into the medium. Another example of mass transfer is extraction of penicillin from fermentation liquor using organic solvents such as butyryl acetate. When solvent is added to the broth, the relatively low concentration of penicillin in the organic phase causes mass transfer of penicillin into the solvent. Solvent extraction is an effective downstreaming processing technique as it selectively removes the desired product from the rest of the fermentation liquid. So mass transfer basically key hai how we will transfer mass from high concentration to lower concentration. ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं कि ਜਦੋਂ ऑक्सीजन है ਅਸੀਂ ਫਰਮੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ एयर इनपुट का एक प्रोब ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, that is a basic requirement while we are dealing with aerobic fermentation, ठीक है। सो ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 에ਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ 에ਅਰ ਦਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਫਲੂਇਡ, ठीक है। सो जो ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਬਲਸ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮੀਡੀਅਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 에ਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ। mass transfer means related to either liquid, solid or gas, ठीक है। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ mass transfer coefficient ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ then ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ mass may be anything, ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ air supply ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਤਲਬ air transfer ਕਰਨੀ ਹੈ, either you are talking about in mass transfer either you are talking about any liquid thing, air or solid, ठीक है। सो की है बेसिकली की है कि कंसनट्रेशन की वेरीएशन के डिपेंड्स के उत्ते आप मास को ट्रांसफर करना है फ्रॉम फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, ठीक है। उत्थे एक इक्विलिब्रियम लैके आने लिए या प्रॉपर जी मास है उसको इक्वैलिटी दे विच ट्रांसफर करने के लिए। सो ऑक्सीजन अगर एरोबिक फर्मेंटेशन है, सो एरोबिक फर्मेंटेशन की रिक्वायरमेंट है कि उसको प्रॉपरली ऑक्सीजन मिले। जिस एरिया ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਫਲੂਇਡ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਬਿਲਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਦੈਨ ਬਬਲਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਫਰੋਮ हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। सेम उसने सैकेंड एग्जाम्पल पेंसिलिन की देती कि जो पेंसिलिन असी फर्मेंटेशन लिक्विड के विचों एक्सट्रैक्ट कराना दैन वी विल फोकस और वी आर यूजिंग बेसिकली पेंसिलिन एक्सट्रैक्शन जो असी करनी आ तो असी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए जी पेंसिलिन एक्सट्रैक्ट करनी है डाउन स्ट्रीमिंग करनी है जी असी तो असी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मैथड अपलाई करते हैं। सो इतने सॉल्वेंट ऐड कर देंगे
लाइक ब्यूटाइल एसीटेट वो सॉल्वेंट जिहड़ा है वो मूवमेंट हेल्प करता है पेंसिलिन दी फ्रॉम हाई टू लो कंसनट्रेशन दैन असी जी पेंसिलिन है उसको डाउन स्ट्रीमिंग के थ्रू ईजीली लिक्विड फ्लूइड है जो फर्मेंटेशन फ्लूइड है उस तो सैपरेट कर लेने अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट असी रिसीव कर लेंगे हैं ठीक है सो मास ट्रांसफर है इट इज़ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल वाइटल और इम्पोर्टेंट रोल इन मैनी रिएक्शन सिस्टम्स ठीक है सो बेसिकली जड़ा है ये मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन term आंदी है molecular diffusion is the movement of component molecules in a mixture under the influence of concentration difference in the system so concentration the differences the basis ते components है जिहड़े move करदे आ और mass है जिहड़ा वो transfer हो जाता है ठीक है next आंदा है diffusion theory diffusion to binary mixture for example a mixture of solutes containing only two components contain ये की है डिफ्यूजन थ्योरी की है कि किद्दां मूव करेगा फर्दर मास तो फर्स्ट जोड़ा है लॉ ऑफ डिफ्यूजन है वो अकॉर्डिंगली असी देखांगे इत्थे देखो तुहानूं इत्थे डायग्राम दिख रही है देखो ये कंसनट्रेशन ऑफ ए की है सी ए डिस्टेंस डिनोटेड बाय स्मॉल वाई ठीक है इट इज़ द दैट जड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करना अपने मास ने CA1 की है इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ A CA2 इज़ फाइनल कंसनट्रेशन A इज़ द एरिया एंड दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ मास ट्रांसफर ठीक है साडे मास ने एक प्रॉपर ट्रैवल किया डिस्टेंस और वो मूव कर गया फ्रॉम वन कंसनट्रेशन टू अनदर और फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन दिस इज डिफ्यूजन थ्योरी विच कम्स अंडर मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन क्या है एक बेसिक प्रिंसिपल असी बोल सकते हैं जिसके थ्रू मास जिहड़ा है वो ट्रांसफर हुंदा from one place to another and it is denoted as JA is equals to NA upon A ठीक है JA is the mass flux of component A NA is the rate of mass transfer of component A small a is the area across means transfer जिथों हो रहा है DAB क्या है binary diffusion coefficient है of A and B CA is the concentration of component A Y is the distance right ठीक है जी उस तो बाद these are some terms which are most commonly used in mass transfer like proper equations for mass heat and momentum these are the fixed equations and with the help of these different equations we will calculate the mass transfer coefficient right ओके उस तो बाद बेसिकली मास ट्रांसफ़र जो है इट डिवाइड्स इनटू 3 टाइप्स फर्स्ट इज़ लिक्विड सॉलिड मास ट्रांसफ़र कि लिक्विड टू सॉलिड कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है सेकेंड विल बी लिक्विड मास ट्रांसफ़र एंड थर्ड विल बी गैस लिक्विड मास ट्रांसफ़र राइट सो इन सॉलिड लिक्विड ट्रांसफ़र हेयर इज़ द डायग्राम जो सॉलिड लिक्विड मास ट्रांसफ़र है उस दे विच बहुत छोटी जी एक सिंपल एक इक्वेशन है बट जदों असी गल करते हैं लिक्विड मास ट्रांसफ़र दी एंड गैस लिक्विड मास ट्रांसफ़र दी दैन एक प्रॉपर डेरीवेशन है जो असी करनी है ठीक है मैं स्टैप बाय स्टैप समझाऊँगी थानू पर तुसी अपनी कॉपी ते नाल दी नाल करके देख लैनी है इफ फिर तुसी कोई प्रॉब्लम थानू फेस होएगी दैन प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी आई विल क्लियर योर डाउट ओके सो हियर इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड लिक्विड मास ट्रांसफ़र सो एक फेज साडे को सॉलिड है अनदर फेज साडे को लिक्विड है ठीक है हियर इज़ द सॉलिड लिक्विड इंटरफेस जिथे दोनों मिलते हैं दिस इज़ द लिक्विड फिल्म ठीक है CA0 CAI ठीक है जी सो जदों आपां इस जिहड़ी इक्वेशन है जिहड़ी डायग्राम है विच एक्सप्लेन्स अस सॉलिड लिक्विड मास ट्रांसफ़र तो इस तो सानू यह इक्वेशन मिलती है
एन ए इज़ इक्वल्स टू स्मॉल के एल ए सी ए नॉट माइनस सी ए आई एंड दिस विल डोनेट एज इक्वेशन नंबर 1। पेन नाल मैं किया होया तुसी इदां ही करोगे दैन थानू ईजी हो जाएगी फरदर जिहड़ी तुसी लिक्विड मास ट्रांसफर और लिक्विड गैस मास ट्रांसफर की इक्वेशन जो तुसी सॉल्व करनी है। ठीक है, नोट्स थानू मूडल ते मिल जाएंगे, कोई दिक्कत आई दैन अगेन कि तुसी मैनू दस देना। ओके, सो के एल की है, तुसी इत्थे अल्फाबेट्स का बहुत ध्यान रखना राजे, हर एक अल्फाबेट का अपना मीनिंग है। इत्थे स्मॉल ए का अपना मीनिंग है, कैपिटल ए का अपना मीनिंग है। कैपिटल ए इज़ डोनेट्स टू अबाउट अ कंसनट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर ए पार्ट। ठीक है, स्मॉल ए इज़ द एरिया। सो मेक श्योर करना है कि तुसी उत्थे के स्मॉल है या लार्ज है, तुसी उस अकॉर्डिंगली ही लिखोगे। इधर तुसी स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए या कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए लिख रहे हो दैन पूरी इक्वेशन का मीनिंग है वो प्रॉपरली चेंज हो जाऊगा। सो प्लीज़ मेक श्योर करना है तुसी जो भी ये इक्वेशंस करनी स्टार्ट करनी है। ठीक है, सो सी ए आई की है कंसनट्रेशन ऑफ ए इन द बल्क लिक्विड साइड। ठीक है, सी ए नॉट की है सॉरी सी ए आई जो है वो फेज़ बाउंड्री, तुहानूं दिख भी रहा होना, फेज़ बाउंड्री जो है लिक्विड सॉलिड इंटरफेस जिसनों असीं फेज़ बाउंड्री भी कह दें, उत्थे ए दा जो कंसनट्रेशन है असीं उसनूं डोनेट कर रहे हैं सी ए आई। सी ए नॉट की है लिक्विड फेज़ दे विच, स्मॉल ए की है जोड़ा एरिया उसने पास करना है, के एल की है लिक्विड फेज़ मास ट्रांसफर कोफिशिएंट, एन ए की है नैट मास ट्रांसफर जोड़ा हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो ए दी असी गल कर रहे सी, ए कंपोनेंट ने स्मॉल ए एरिया दे विचों पास करना है। सो लिक्विड टू सॉलिड है जोड़ा वो मास ट्रांसफर हो रहा है एंड उसकी यह इक्वेशन आ गई। ठीक है, लिक्विड टू सॉलिड। सो की होया सी एन ए नॉट नूं असी एन ए आई दे विचों माइनस कर देना, तुहाडे कोल नैट जिहड़ी है वो कंसनट्रेशन बच जूगी जो तुहानूं एक्चुअल च पता चल जूगा कि कितना मटीरियल है या कितना मास है जो ट्रांसफर होया। ठीक है जी, अगे हुण तुसीं ये डायग्राम बना लैनी आ जिस दे विच की है एक फेज़ बाउंड्री है, टू डिफरेंट टाइप दे लिक्विड्स ने, एक एक्विस फेज़ है एक ऑर्गेनिक फेज़ है। एक्विस फेज़ वाली साइड अपने कोल एक्विस फिल्म बन रही है, ऑर्गेनिक वाली दी साइड अपने को ऑर्गेनिक फिल्म बन रही है। ठीक है, सो सी ए वन तो स्टार्ट होया, सी ए वन इज़ द इनिशियल कंसनट्रेशन, सी ए नॉट इज़ अ फाइनल कंसनट्रेशन। सो इत्थों मास ट्रांसफर होना शुरू होया इत्थे तक गया, बट वो डायरैक्ट नहीं जाता, क्यों? क्योंकि रस्ते विच फेज़ बाउंड्री आती है जो डिफरेंशिएट कर रही है टू लिक्विड्स। सो फर्स्ट सी ए वन दैन सी ए वन आई इंटरफेस के उत्ते जाके सी ए वन की जो कंसनट्रेशन है, दैन सी ए टू आई इंटरफेस से जो कंसनट्रेशन सी ए टू की है सी ए टू। ठीक है जी, डायग्राम चंगी तरह नोटबुक ते बना लैनी है। उस तो बाद फिर असी स्टार्ट कर रहे हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करना। थोड़ा लेंथी है बट कॉम्प्लीकेटेड देखने को लगेगा थानू, बट इन्ना कॉम्प्लीकेटेड नहीं। अगर तुसी एक बार अपनी नोटबुक के उत्ते नाल पूरी इक्वेशन सॉल्व कर ली दैन थानू कभी दोबारा देखने की जरूरत नहीं पएगी। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत स्कोरिंग है, मैक्सिमम मास ट्रांसफर कोफिशिएंट के उत्ते क्वेश्चन जोड़ा आ जाता है। ठीक है, सो हुण आपां इत्थों स्टार्ट करनी है इक्वेशन सॉल्व करनी। ठीक है जी, ओके हुण असी स्टार्ट कर रहे हैं लिक्विड मास ट्रांसफर। सो आवर फर्स्ट इक्वेशन इज़ Na1 इज इक्वल्स टू KL1A CA1 माइनस CA1I। सो इक्वेशन सॉरी जी डायग्राम सी उसमें तुसी प्रॉपरली अपनी नोटबुक ते बनाया होया होना एंड यू विल ईजीली डिफरेंशिएट। ठीक है, जिवें फर्स्ट इक्वेशन तुहाडे कोल ए सी, ठीक है, जो गल कर रही सी सॉलिड लिक्विड मास ट्रांसफर कोफिशिएंट दी। ठीक है, दिस इक्वेशन सिमिलर वे दे नाल तुसी इत्थे नैक्सट टू इक्वेशनस लिखी हैं, बट दीज टूज आर रिलेटेड विद लिक्विड मास ट्रांसफर। सो फर्स्ट इज दैट्स वाई अपने को दो डिफरेंट इक्वेशनस आ रही हैं, दैट्स वाई सानू जरूरत पै रही है अगे फर्दर इसनू
ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਸੋਲਵ ਇਟ। ਸੋ ਸੇਮ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ Na1 ਇਜ਼ ਮਾਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, KL1A, CA1 ਕੀ ਹੈ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਟ A1, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ I ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, A ਇਜ਼ ਏਰੀਆ, KL1A ਇਜ਼ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਸੇਮ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਰਾਜੇ। ਓਕੇ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ KL ਲਿਖਿਆ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵੀ 1 ਔਰ 2 ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਤਾ। KL ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਲਿਕੁਇਡ ਫੇਜ਼ ਮਾਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। A ਇਜ਼ ਸੇਮ ਫॉर बोथ ਏਰੀਆ। CA1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ CA1I, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ 'ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ CA2I ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਟ ਕੀ ਬਚ ਰਿਹਾ CA2। CA1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ CA2 ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਲਿਕੁਇਡ ਮਾਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ KL ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ 3 ਔਰ 4 ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸੌਰੀ 2 ਐਂਡ 3 ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ, KL1A ਔਰ KL2A ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਏ, ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਔਰ 5 ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਔਰ 5 ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਈ, ਦੈਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ Na1 ਐਂਡ Na2 ਸੀ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ Na ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹੇਅਰ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਅ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਸਟੇਜ, ਸੋ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ। ਸੋ 1 ਅਸੀਂ 1 ਔਰ 2 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਟਾਤਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ distribution law, here is the term distribution law, at equilibrium the ratio of solute concentration in two phases is given by distribution coefficient। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ 2 ਫੇਜ਼ਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਊਟ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਅ ਔਰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਔਰ ਪਾਰਸ਼ਲ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੀਨ ਸਮਾਲ m ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਲ m ਹੈ, ਉਸਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਕਸਡ ਹੈ, m ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ CA1I ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ CA2I, ਐਂਡ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੇਤਾ 6। When we rearrange this equation, then we get CA1I is equals to MCA2I. This will be equation number 7. Okay. फिर असी की किया, जो साडे कोल m की वैल्यू से उसनू रीअरेंज करके इक्वेशन नंबर 7 आ गया, ठीक है। जदों उसनू अगेन रीअरेंज किया साडे कोल इक्वेशन नंबर 8 आ गया। नाउ थानू कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं है, अगर तुसी बिल्कुल ध्यान ना देखो, असी सिर्फ एक m की साडे कोल डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की साडे कोल फिक्सड नोन वैल्यू सी, असी उसनू 2 टाइम्स रीअरेंज किया एंड वी विल गेट 2 न्यू इक्वेशनस, ठीक है। साडा मोटिव की सी, m इज इक्वल्स टू CA1I डिवाइडेड बाय CA2I, ठीक है। असी की किया, एक दे विच 7 नंबर इक्वेशन CA1I की वैल्यू कैलकुलेट की एंड सैकेंड CA2I की। ਜਦੋਂ CA1I ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡਤਾ, ਦੈਨ CA2I ਇੱਧਰ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ CA2I ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, m ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਦੈਨ ਆ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। सॉल्व करके देखना राजे नाल दी नाल, ठीक है। सिर्फ मेरा टॉपिक सुनना नहीं है, अगर सुन के देखोगे दैन थानू लगेगा कि बहुत ईजी है, बट जो तुम कैलकुलेट करोगे दैन थानू कोई ना कोई दिक्कत भी आऊगी, तो थानू अच्छी तरह तुसी गो थ्रू हो लोगे तो तुसी कभी भुल नहीं सकते, ठीक है। सो हुण की करें आपां, इक्वेशन नंबर 7 and 8 can be used to eliminate the interfacial concentrations from equation number this and this, and now we take direction substitution, right। असी की किता, जेडी इक्वेशन नंबर 7 एंड इक्वेशन नंबर 8 सी, उसकी वैल्यू नू इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 च फिल करता। क्यों करता, क्योंकि 4 और 5 दे विच साडे कोलों सेम टर्म्स सी,
CA1I, CA2I, here is I, ये बुक च मिसटेक सी, 1 मिनट मैंने ठीक कर दें दो, की भी हुई आ तो दिख नहीं रहा, ठीक है। सो असी की किया 7 और 8 साढ़े कोल वैल्यूज़ आईयां सी CA1I एंड CA2I दी, हुण असी इन्होंने 4 और 5 विच पुट करता, दैन साढ़े कोल 9 एंड 10 नंबर इक्वेशन आ गई जो असी उसनूं पुट किया। पुट करके देखो, टेक योर टाइम, ठीक है। सिंपली असी रिप्लेस करता CA1I नूं चौथी इक्वेशन जो रिप्लेस किया, दैन उत्थे MCA2I आ गया, जो असी 5th च किया, दैन उत्थे की आ गया CA1I डिवाइडेड बाय M रादर दैन CA2I, CA2I की जगह ए वाला यह आ गया, दिस वन, ठीक है। now we multiply equation number 5 by M and equation number 4 divide by M। हुण असी की करना, असी इक्वेशन नंबर जी 5 है उसनों M नाल मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन नंबर 4 है उसनों M नाल डिवाइड करना। एक बार असी की किया 7 और 8 की जी वैल्यू सी 4 एंड 5 फिल करन तो बाद साढ़े को 9 और 10 नंबर इक्वेशन आई। नाउ असी की करना, दोबारा तो 4 एंड 5 नूं एक न्यू वर्जन देना, जिस असी की करना 4th नूं M नाल डिवाइड करना, 5th इक्वेशन नूं M नाल मल्टीप्लाई करना, दैन वी विल गेट दीज टू न्यू इक्वेशनस एंड दे विल बी डोनेटेड एज इक्वेशन नंबर 11 एंड इक्वेशन नंबर 12। आराम नाल करो, पॉज करके वीडियो, उस तो बाद फिर दोबारा तो देखना स्टार्ट करो, फिर तुसी इत्थे 11 और 12 ते पहुँच के अगर थानू कुछ भी प्रॉब्लम आ रही, वैसे बहुत ईजी मैथमैटिक्स इत्थे यूज़ होया, फिर भी अगर थानू किसी ने कुछ डाउट होया प्लीज़ लैट मी नो, आई विल एक्सप्लेन यू। मैं थानू प्रॉपरली पर्सनली भी बच्चे नू करवा सकती हाँ, प्रॉपर लिख के भी करवा सकती हाँ अगर थानू कोई डाउट है, बट प्लीज़ देख लेना। अगर तुसी सॉल्व करके नहीं देख रहे दैन थानू इसको कुछ समझ नहीं आना, तुसी सॉल्व करोगे दैन यू विल गेट आंसर्स, ओके। बस मेरी हर एक इंस्ट्रक्शन को ध्यान ना सुनो, वीडियो नू पॉज करके दोबारा हौली हौली करते रहो, ठीक है। फिर की करना है, इक्वेशन नंबर 9 नू 11 नाल प्लस करना है, इक्वेशन नंबर 10 नू 12 नाल प्लस करना। नाउ इत्थे बहुत ईजी मैथमैटिक्स यूज़ होएगा, वेट, हाँ जी, जदों फॉर एग्जाम्पल स्मॉल a प्लस b इज इक्वल्स टू c प्लस d, एक इक्वेशन है साढ़े कोल, कैपिटल A प्लस b इज इक्वल्स टू कैपिटल C प्लस कैपिटल D, 2 नंबर इक्वेशन है। जदों असी कहने कि 1 और 2 नू प्लस करना तो इज इक्वल टू दे राइट साइड जो है वो अपना प्लस होएगा, लैफ्ट साइड अपना प्लस होएगा। किमें प्लस होगा इत्थे, स्मॉल a प्लस b प्लस कैपिटल A प्लस कैपिटल B इज इक्वल्स टू स्मॉल c स्मॉल d प्लस कैपिटल C प्लस कैपिटल D, एवें होएगा प्लस, ठीक है। सो इत्थे असीं की कर रहे हैं, 9th नू 11th ना प्लस करना है, 10 नू 12 ना प्लस करना है, उस तो बाद कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा जो असीं बाहर लै सकते हैं, कुछ ना कुछ प्लस माइनस होएगा जो कट जाएगा। उस तो बाद साडे कोल इक्वेशन नंबर 13 एंड इक्वेशन नंबर 14 आएगी, राइट। देन वी हैव अ वन मोर, 2 मोर फिक्स थिंग्स कि 1 अपॉन असी हुण तक जिन्नियां भी केज लिखियां ऑल आर स्मॉल केज, मैं पहला भी थोड़ा एक्सप्लेन किया सी, कैपिटल एंड स्मॉल लैटर्स का अपना अपना डिफरेंस है। कैपिटल M मीनस समथिंग डिफरेंट, स्मॉल m मीनस समथिंग डिफरेंट, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो हेयर इन 15th and 16th number equation we have a value for capital KL1A and capital KL2A, these are fixed values, ये साढ़े कोल फिक्सड वैल्यूज़ होंगे एंड दे आर रिजेंबलिंग विद दीज टू। सो इत्थे असीं रिप्लेस करके इनू हटा के सिर्फ इत्थे 1 अपॉन KL1A लिख देंगे 13th दे विच और 1 अपॉन KL2A लिख देंगे 14th दे विच, और फिर ये साढ़े कोल फाइनल इक्वेशन एवें दी बन जूगी, ठीक है। सो दिस इज़ द लिक्विड मास ट्रांसफर कोफिशिएंट।
and finally we get our final two equations ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ proper 15 16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 और 18 ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ up to you. So next is gas liquid mass transfer. Then this will be your homework for tomorrow. Either to see ki karna, this is the diagram. Here one side is gas phase, another side is liquid phase. At CAG ho gaya. G means gas, CAGI means interface, CALI liquid in interface, CAL means liquid. Liquid phase film resistance, gas phase film resistance. सेम वे दे नाल इक्वेशन स्टार्ट होएगी, ठीक है, एंड सेम वे दे नाल सॉल्व होएगी. उवें ही इहदे विच भी यू नो एम दी वैल्यू आएगी, फिर उसको असीं रीअरेंज करांगे. दैन वी विल गेट टू डिफरेंट वैल्यूज़ फॉर CA1I और CA2I जिवें उधर कीता सी. सो इत्थे CAGI और CALI ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਐਡ ਹੋਏਗਾ. ਦੈਨ ਫਾਈਨਲੀ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ योर फाइनल you know equation for what? Gas liquid mass transfer. So in our next Zoom class we will discuss about gas liquid mass transfer कि ਤੁਹਾਡੀ equation solve ਹੋਈ नहीं ਹੋਈ. फिर उसके अकॉर्डिंगली ਤੁਹਾਡਾ नेक्स्ट ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ है वो मैं प्रिपेयर करके YouTube ਤੇ अपलोड करूँगी. इस तो बाद फिर ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ next topic. So goodbye, take care. If you have any query, please comment in the sections below. Please subscribe and like my video. Thank you.